क्रेडिबल फैकल्टी है, क्वालिटी कंटेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू कम टू सारथी IAS is the seriousness and the structure that we will bring to your preparation. I can guarantee to you that with the team that we have here, you will have the best content in the market. आप किसी भी रेफरेंस बुक और किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ लेना, आपको और कोई यूपीएससी रेलेवेंट पॉइंट नहीं मिलेगा, बिकॉज वी हैव वर्क दैट हार्ड ऑन आवर कंटेंट. तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वी हैव गॉट यू फुली कवर्ड. हम ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सब्जेक्ट बता के छोड़ देंगे, और मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बस लेक्चर आओ, अटेंड करो और अपना काम करो. This is a batch for serious aspirants. This is a batch for those who want to work hard, and we promise that we will work harder than you. एक ही साल बचा है यूपीएससी 2027 में, और टाइम काफी कम है. एक साल इज नॉट इनफ इफ वी हैव मिसगाइडेंस ऑन आवर साइड. 201 प्लस सिलेक्शन हम क्लेम करते हैं ना, ये सारे हमारे कोर्सेज के बच्चे हैं. वी हैव नॉट इवन क्लेम्ड अ सिंगल स्टूडेंट who was just associated with us in some meager capacity. All of them have learned from us, studied from us, and now are officers of this great country. Hello and welcome to Saarthi IAS. I am Dr. Shivid. This is the official launch video for our live GS Foundation batch for UPSC CSE 2027. This batch starts on 14th May 2026. इसकी जो teaching language होगी, that will be Hindi and English combined. So English जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, बट जो नोट्स होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे सेपरेटली. दिस बैच इज वैलिड टिल December 2027 एंड ऑल्दो इट इज अ लाइव बैच, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स जो आपको अवेलेबल होंगी एनी नंबर ऑफ टाइम्स. अब यार एक सिंपल क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाई शुड आई जॉइन सारथी IAS? एंड इट्स अ वेरी रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर. इसके 3 सिंपल रीजन देता हूं मैं आपको. ये 3 रीजन है. पहला, हमारी फैकल्टी. इस बैच में जो भी आपसे बात करेगा, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो भी आपसे बात करेगा उन्होंने मिनिमम इस एग्जाम में इंटरव्यू दिया है या फिर उन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है. सो एनीबडी हु स्पीक्स टू यू आउट ऑफ ऑल दीज पीपल हियर, दे हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स, दे हैव क्लियर्ड द मेंस देमसेल्व्स, एंड दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. सो वी हैव अ टीम of extremely credible faculty, and in this video I'll make you talk to all of them. Second reason is the quality of our content. And खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता. मैं आपको बताऊं कि यार हमारा कंटेंट देखो इतनी क्वालिटी का है, इतना अच्छा है, doesn't really make sense. बट ये आप सुनिए हमारे स्टूडेंट से. 2 मिनट लगाइए and look at the feedback that we have gotten from our students. प्रीलिम्स के लिए सर साइंस टेक एनवायरनमेंट किया था आपसे, रिसोर्सेज यूज किए थे आपने सर. उसके बाद सर 2023 में जब शुरुआत किया था तो वरुण सर का लॉस देखा था, राइट, लाइव आंसर राइटिंग वाली चीज है, राइट, एंड सजल सर का टेम्पलेट्स वाला भी देखा था. I was part of HSATI actually. When Saarthi IAS was previously HSATI, I was part of the courses then. So post my prelims 2023, when I failed in 2023, I was looking for a comprehensive mains course that can be done, right, which would help me a lot in my 24 attempt. So something which I could have, which I'll be able to complete by December. So while looking for it, I found Varun Jain sir's MMP Plus, which was extremely good. I looked at it; it was extremely good, and then I took it, sir. Right. Then unfortunately, I couldn't make it in 24 prelims. So for this year's prelims, I was looking for one-stop solution for science and tech, environment, economy as well. So obviously I took your course, and I especially like the economics part, the microeconomics part. It was wonderful. I had taken PRP, which started in November. So I took that holistically from very day one to till last, all the classes that took place. And then in mains, I had taken answer writing, that part with Shivin sir. Sir, MMP Plus, and this year I took Write Smart. Sir, at that point I had given one attempt and I had flunked prelims, so I wanted something that will help me cover all the main topics, so it was the right combination. I enjoyed those courses. I purchased the science and tech course. Yes ma'am, I relied on that course for science and tech heavily. सर वेटरन्स फीडबैक सर काफी हेल्प मिली इसमें. आपकी जो गाइडेंस थी ना, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, उससे काफी हेल्प हुई सर. पिछली GS4 का भी पेपर ठीक गया है, और जो वैल्यू एडिशंस पेपर में जो एक्स्ट्रा करना था ताकि थोड़ा सा और मार्क्स को फेच किया जा सके, तो उसमें मैंने काफी हेल्प मेरी. और जो आपने बताया ना, आपके जो फीडबैक थे, फॉर एग्जांपल कि थोड़ा सा मैं बहुत ही छोटे पॉइंट्स लिख रहा था, थोड़े से एलोबरेट करके लिखना था. मैं क्लियरली याद कर सकता हूँ कि GS2 में अब की बार मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखा है. इससे कोर्स
और करंट अफेयर कोर्स। ऐसे जो मैं पहले लिख रही थी, मेरा जो सबसे प्राइम इशू था वो लिंकेजेस का था, जो आपने सॉर्ट करवा दिया, और आपने एक मॉडल आंसर दिया था ऐसे का, मैंने एज इट इज रेप्लिकेट कर दिया था मेंस में। Yeah, sir, I was the student of MMP Plus this year after the prelims. And I had also watched Shivan sir's those 12-hour long sessions he used to take on before prelims, that those helped a lot. And I took a lot of help from the keywords you used to share on your Telegram group. I've used them extensively for the answer writing part, because especially for the IR and stuff, I have just asked. You gave a PDF that was like country-wise, there were like different keywords. Like for Africa, the question on digital partnership came. I just wrote every keyword I could remember from that PDF. So yeah. सर राइट मेंस ज्वाइन किया था अभी, आपके सारे वो मतलब सारे GS1 तो पूरा देखा था, GS3 में इकोनॉमी देखा था, इंटरनल सिक्योरिटी देखा था, एंड उस यस सर राइट स्मार्ट में GS2 उतना सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। आप जो कीवर्ड्स बताते हैं ना स्पेसिफिकली, वो था कि उस 2 महीने के टाइम पीरियड में इतना रिप्रोड्यूस कितना होता है वो मैटर करता है, बट जैसे आपने वो बोला था कि मुंगेर कर कमेटी लिख के आना, तो क्वेश्चन आया तो आई रोट मेंस टेस्ट सीरीज में और MMP में। सर टेस्ट सीरीज तो सही में काफी अच्छा था, मतलब चेकिंग वगैरह भी बहुत 3-4 दिन में हो जाता, तो उतना दिन वेट भी नहीं करना पड़ता था। I was part of your GS4 mains module and test series. Actually, पहले मुझे लगा था कि GS4 I can do it on my own, so I did not take any major coachings or test series. But then in my previous mains, I did not. I scored 109 in GS4, which was not very good. So I believe that I lacked writing practice, and I already knew you from some time. So I thought I'll join your test series, and it was very helpful indeed. Writing tests helped a lot, and especially what the tricks in the test discussions, what you used to tell me, that helped a lot. आपका environment और science and tech का कोर्स देखा, एंड GS3 I was totally dependent on you, so thank you so much sir. मतलब I really liked watching your videos since the time you were an anonymous aspirant, and then somehow आप मुझे बहुत relatable लगते थे. I used to watch your videos, और मुझे बस उस टाइम पे अच्छा लगता था. I remember that first video जो आपका था, you know, how to clear prelims, so that was the first video I watched. So GS3, especially internal security, agriculture, disaster management, that was my source. And the science and tech and the environment bundle program that I took for my 2024 attempt, that was my first attempt. And then I also took the help of MMP Plus, because also I was pretty much lost where to gather the notes and content, how to write answers. So MMP Plus helped me a lot. During my mains preparation, in my GS3 module as well as the QEP program for PSIR, I had taken it. I would suggest that it was very good. It was very valuable during both my mains preparation and even currently during my interview preparation. I was enrolled in Sarthi's MMP Plus program. Then I also used the one-to-one mentorship. Then I used the interview guidance program. My own experience was that I didn't have a lot of main-centered content in 2023 because it was my first attempt and I was at loss that where should I get that material from. But then I remember that laws and the content provided by Varun sir was a lifesaver because it was precise and to the point, and I could, especially for the main subject, I could really take all the points which were mentioned over there and in a very standard format replicate it in my answer sheet. I was a part of Write Smart and a part of PSIR QEP, Quality Enrichment Program, immensely helped. Actually, Write Smart majorly helped in making those templates that are needed to quickly generate answers. And Quality Enrichment Program was that little bit of value addition in terms of quotes and keywords and authors and their books. सर सारथी में तो सर स्टार्टिंग से हो, मतलब राइट स्मार्ट के तीन साल से कर रहा हो, लॉस 2 साल किया था, MMP भी हो, अच्छा था, मतलब उसके फीडबैक वगैरह भी अच्छे थे. Sarthi IS, I have been affiliated through Sajal sir's mains test series as well as mentorship program for the past 2 years. And last year also I was a part of IGP here. Overall experience, I'd say what all things I have been affiliated with Sarthi has been very conducive, and there is very less friction, or I feel it is very hospitable in nature, and therefore I have been trusting it. मैंने MMP का मैं फुल प्रोग्राम मैंने लिया था. उसमें जो राइट स्मार्ट होता है शिवन सर का, सर साथी की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो बहुत ही यूनिक पॉइंट है वो है लाइव इवैल्यूएशन.
उसने मुझे बहुत हेल्प किया सर। I was part of the veteran test series in 2025 this year and also the interview guidance program. The guidance that sir provided to me was very helpful in approaching the questions, in answering them, and also to have as many points as possible. Sajal sir has played a great role in my GS examination papers. Credible faculty है, quality content है, but the most important reason to come to Saarthi IAS is the seriousness and the structure that we will bring to your preparation. बात करते हैं इसकी। मोस्टली यार जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो क्या आइडिया रहता है किसी भी फाउंडेशन कोर्स में कि हम गए, हमने लेक्चर देखे, वो वीडियोस थी, फिर हमने उसके कुछ नोट्स बना लिए और यही साइकिल रिपीट होता गया। वीडियो देखी, नोट्स बना लिए, कुछ हमें आइडिया नहीं है कि हमारा शेड्यूल क्या है, क्या हम मेंस के लिए पढ़ भी रहे हैं या नहीं, क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम हैंडल कर रहे हैं, क्या PYQs एक्चुअली हम एड्रेस कर पा रहे हैं, कोई इस बारे में बात ही नहीं होती। तो यहाँ मैं आपको सारथी IAS की फिलॉसफी बताता हूँ। देखो, पहली बात आइडिया ये है दैट वी ट्राई टू क्रिएट अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। आपको जनरल स्टडीज के लिए इस बैच के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, चाहे प्रीलिम्स है, चाहे मेंस है, चाहे इंटरव्यू। अब ऐसा कैसे कह सकता हूँ मैं? तो प्री की बात कर लेते हैं। यार प्रीलिम्स में हमें क्या चाहिए? प्रीलिम्स में हमें चाहिए कि हम इन डेप्थ रीडिंग करें, MCQ प्रैक्टिस करें, PYQ सॉल्व करें, रेफरेंस और स्टैंडर्ड बुक से सारे फैक्ट्स को एक जगह कंपाइल करें और हमारे वीकली टेस्ट भी हो जाए। ऑल ऑफ दिस वी डू इन दिस बैच। कैसे? आप लेक्चर्स देखोगे एंड आई कैन गारंटी टू यू दैट विद द टीम दैट वी हैव हियर यू विल हैव द बेस्ट कंटेंट इन द मार्केट। आप किसी भी रेफरेंस बुक और किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ लेना, आपको और कोई UPSC रेलेवेंट पॉइंट नहीं मिलेगा बिकॉज वी हैव वर्कड दैट हार्ड ऑन आवर कंटेंट। बट कंटेंट इज नॉट सफिशिएंट। इसके बाद हम क्या करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद एवरी वीक वी टेक अ टेस्ट ऑफ 25 MCQs विद यू, ताकि आपकी प्रिपरेशन चेक होती रहे। इसमें आपकी रैंकिंग, आपकी मिस्टेक्स सब हाईलाइट होती है। प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये भी हम क्लास में ही डिस्कस करते हैं। द वे इट हैपेंस इज दैट द क्वेश्चन विल कम इन फ्रंट ऑफ यू इन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपके सामने आया, आपको 1 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए, एंड वंस यू हैव सॉल्व्ड इट, whoever is teaching you that subject will tell you कि यार इसमें ये आंसर था और आपने अगर गलती करी है तो ऐसी गलती करी है, and we do that live। तो आप चैट में अपने टीचर से बात भी कर सकते हैं। अब प्रीलिम्स में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यार एंड में जब प्रीलिम्स आने वाला होता है, जैसे मई 2027 में हमारा प्रीलिम्स है, लास्ट के टाइम पे यार थोड़ी सी एक हेजिटेशन रहती है। वो हेजिटेशन ऑल्सो we will take away from you because we do something called live MCQ solving sessions for revision। आप अभी पढ़ लोगे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी मई, जून, जुलाई के मंथ्स में, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्च में आपको याद है या नहीं? दैट ऑल्सो वी कवर हियर। तो मार्च में, अप्रैल में वी टेक लाइव MCQ सेशंस विद यू। ये मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तब आपको कहेंगे कि यार आपने मई में इकोनॉमी पढ़ा था या आपने जून में एमपुरी सर से पॉलिटी पढ़ा था, देखते हैं आपको कितना याद है। अगेन 25 क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन, लाइव सॉल्विंग दैट यू विल डू विद अस, ताकि आपको प्रीलिम्स में कभी दिक्कत ना आए। प्री की बात हुई, मेंस की बात करते हैं। मेंस में 3 सिंपल स्टेप हैं यार। सबसे पहला है कंटेंट। कंटेंट हैज टू बी गुड, क्योंकि वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं। बाय फार द बेस्ट कंटेंट इन द मार्केट यू विल फाइंड एट सारथी IAS। आप हमारी टीम देख लीजिए, हमारा फीडबैक देख लीजिए। बट अगेन वी डोंट स्टॉप हियर। लेक्चर्स तो हैं ही, PDF तो हैं ही, बट यहाँ रुकते नहीं है। मेंस में इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। बट आंसर राइटिंग में लोग क्या करते हैं, सीधा आपको कहते हैं यार टेस्ट लिख लो, या रोज एक क्वेश्चन दे दिया, कहते हैं यार तुम सॉल्व कर लो। दैट इज नॉट व्हाट वी डू। हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम आपको कहते हैं यार हम आपको साथ बिठा के लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग कराएंगे। द होल पॉइंट ऑफ दिस बैच इज दिस डेमोन्स्ट्रेशन, दिस लाइव एक्टिविटी बिटवीन यू एंड मी, ताकि नॉलेज ट्रांसफर हो पाए। इसके लिए हम 2 चीजें करेंगे। वन इज कॉल्ड राइट स्मार्ट। राइट स्मार्ट में आप मेरे साथ 300+ PYQs लिखोगे। मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे और मैं आपको कहूंगा ये क्वेश्चन है, 3-4 मिनट है, आप सोचो इस क्वेश्चन में आप क्या लिखते, एंड देन आई वुड टेल यू हाउ आई वुड राइट दैट क्वेश्चन। सेम थिंग अगेन we'll do called live answer writing sessions। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कवर हो गए मेंस के, व्हाट अबाउट न्यू क्वेश्चंस? न्यू क्वेश्चंस के लिए वरुण जैन सर आपके साथ करेंगे लाइव आंसर राइटिंग सेशंस, वेयर व्हाट he'll do is he'll make you write the questions in class। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 7 मिनट का टाइम है, लिखिए और आगे बढ़िए। And there you'll lose your inertia of answer writing, and then we will finally come to tests। तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, we have got you fully covered। हम ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सब्जेक्ट बता के छोड़ देंगे, और मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बस लेक्चर आओ, अटेंड करो और अपना काम करो। दिस इज अ बैच फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स।
This is a batch for those who want to work hard and we promise that we will work harder than you. एक ही साल बचा है यूपीएससी 2027 में और टाइम काफी कम है. एक साल इज नॉट इनफ इफ वी हैव मिसगाइडेंस ऑन आवर साइड. तो हमें ये इंश्योर करना है दैट फ्रॉम टुडे ओनली वी टेक द राइट डिसीजंस एंड वी स्टडी इन द राइट मैनर. अब क्यों कह रहा हूं मैं इसको वन स्टॉप सोल्यूशन? बिकॉज एग्जैक्टली वही आइडिया जो मैंने आपको अभी बताया. सबसे पहले हमने अपना लाइफ फाउंडेशन फेस किया, हमने अपना बेस सेट किया, वी स्टडीड द सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एक्सेट्रा. उसके बाद हम आए मेंस फाउंडेशन पे, फिर हम आए मेंस आंसर राइटिंग फेज पे ताकि हम आंसर राइटिंग भी कर सकें. एंड देन वी कम बैक टू प्रीलिम्स रिवीजन फेज. अभी जब मैं आपको इस बैच का शेड्यूल बताऊंगा तो आपको ये लॉजिक समझ आएगा. दिस इज द नंबर ऑफ रैंकर्स दैट वी प्रोड्यूस लास्ट ईयर एंड ये इन सबके हैंड रिटन फीडबैक्स हैं, इंटरव्यू वाले नहीं है, ये एक्चुअली क्लास के बच्चे हैं. और जो 201+ सिलेक्शन हम क्लेम करते हैं ना, ये सारे हमारे कोर्सेज के बच्चे हैं. वी हैव नॉट इवन क्लेम्ड अ सिंगल स्टूडेंट हु वाज जस्ट एसोसिएटेड विद अस in some meager capacity. All of them have learned from us, studied from us, and now are officers of this great country. अब इस बैच का एक बार शेड्यूल देखते हैं and you'll understand what I was talking to you about. आपने स्टार्ट किया अपनी फाउंडेशन से. You started with geography and economy, then you went to polity and history. तो around the time of September, you have sort of set up a basic foundation. यहीं पर हम MMP Plus, जो हमारा सबसे कॉमन फेमस कोर्स है, जो आप सब टॉपर्स के नाम से सुनोगे, वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है. Here is where you start preparing for mains as well. मेंस को बाद में डेलीगेट नहीं करेंगे कि प्री होगा तो देखेंगे, शुरू से प्रिपेयर करेंगे. एंड दिसंबर तक हमारा आइडिया रहेगा कि हमारा मेंस भी डिसेंटली प्रिपेयर हो जाए, एटलीस्ट 60-50% हो जाए, और हमारा फाउंडेशन में सारा पार्ट कंप्लीट हो. दिस इज द फर्स्ट फेज टिल दिसंबर. अब दिसंबर में आपका 50-60% मेंस हो गया, आपका काफी हद तक फाउंडेशन खत्म हो गया. That doesn't mean we abandon you. हमें पता है आपका प्रीलिम्स आना है मई में, हमें पता है उसमें डर लगेगा, एग्जाम आने वाला होगा, उस टाइम पे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. तो लुक एट व्हाट वी आर डूइंग इन Jan, Feb and March. In Jan, Feb and March we'll do prelim specific science and tech, environment, ancient medieval art and culture. ये 3 सब्जेक्ट्स. पूरे साल का करंट अफेयर्स we'll do here and we'll also do live MCQ solving sessions to revise all the things that we studied here. तो सब कुछ इन 3 months में रिवाइज होगा एंड स्टिल यू विल बी लेफ्ट विद अप्रैल एंड मई. इट इज माई कमिटमेंट टू यू दैट ऑल द प्रीलिम्स सेंटर्ड थिंग्स विल फिनिश ऑन 31st March 2027. तो प्रीलिम्स के लिए आपको 2 महीने मिलेंगे. सम पार्ट ऑफ दिस बैच वी विल ऑल्सो कंटिन्यू आफ्टर प्रीलिम्स, बट वो सिर्फ मेन स्पेसिफिक होगा. प्रीलिम्स के लिए आपको जो भी पढ़ना है हम 31st March तक खत्म करेंगे. इट इज ऑल्सो माई कमिटमेंट टू यू that around 50% of the main syllabus we will finish by December 2026, ताकि मेंस में ऐसा ना हो कि प्री के बाद 3 महीने हैं और उन 3 महीने में आप स्टार्टिंग से मेंस रीड कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता. आप डिसेंटली मेंस के लिए भी पहले से ही प्रिपेयर्ड हो गए. नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट आवर विजन, आई हैव टोल्ड यू अबाउट आवर शेड्यूल. Let us meet the people behind this vision. Let us meet the incredible faculty of Saarthi IAS. So starting with history, we have Himanshu Khatri sir here. Sir is my senior from the IRS. Also attended IIT Delhi. So sir, history mein what is the approach we are going to follow for our foundation students? Well, as I said in my launch video also, we are going to focus on bypart of things and we are going to develop a perspective. जैसे एक पर्सपेक्टिव क्या है कि ओवरऑल हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं तो इट्स अ स्टोरी अबाउट 2 सेगमेंट्स. वन इज स्टेट एंड सेकंड इज पीपल. बिकॉज जिस जॉब के लिए हम ट्राई कर रहे हैं वो क्या है, वी आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब इन स्टेट एंड स्टेट इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट रूल्स अ टेरिटरी एंड इट्स पीपल. नाउ इन आवर civilization, Indian civilization, at different points of time periods, different territories have been under different kind of states, and there has been a different way of life of people. Right. तो अगर आप सही में अगर सिलेबस देखें एंशियंट का, मिडिवल का, ठीक है, तो एंशियंट एंड मिडिवल के 2 ब्रॉड कैटेगरीज जैसे हम बना सकते हैं. एक आ जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स, जहाँ पे हम महाजनपदास हो गए, मौर्याज हो गए, इनकी बात हम कर रहे हैं, दिल्ली सुल्तनत और ये सब हो गया. हम स्टेट के स्ट्रक्चर को जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या गलतियां की थी जो अब हमारा नेशन स्टेट ना करे, और उन्होंने पास्ट में क्या अच्छी चीजें करी थी जो अब हमारा नेशन स्टेट उनसे सीख सके. तो ये पर्सपेक्टिव है. और दूसरा क्या है, लाइफ ऑफ द पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू सर्व द पीपल बाय बीइंग अ ब्यूरोक्रेट थ्रू द नेशन स्टेट. तो इसलिए common man does not want to be MP, MLA minister. Common man wants economic security, physical security, socio-cultural security. जी. तो इसकी वजह से उनकी वो जो डे टू डे लाइफ है उस पे फोकस रहता है. प्लस कॉमन मैन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, थ्रू आर्ट, थ्रू कल्चर.
जी। तो इस तरीके से, चाहे छोटी सी बात है, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ चाहे बस सिलेबस की बात कर रहा हूँ, बट उसके अंदर भी आई एम ट्राइंग टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव अमंग दिस। राइट। इसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री में भी वही है। वर्ल्ड हिस्ट्री में बस ये चीज चेंज हो जाती है कि वहां पे जो टेरिटरी है वो पूरी अर्थ है। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री इट इज डोमिनेटेड बाय सुपर पावर चेंजेस एंड लाइक राइज एंड फॉल ऑफ सुपर पावर्स। राइट। प्लस वहां पे भी पीपल का है। जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो फिर देयर वी टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल और एक्सप्रेशन, क्योंकि कॉमन मैन को एमपी एमएलए मिनिस्टर तो बनना नहीं था। तो फिर जब उसने डिसाइड किया कि मेरा एक रोल होना चाहिए स्टेट में, जिसको मैं नेशन स्टेट कहूंगा, तो वो रोल कैसे होना चाहिए, मेरे क्या अधिकार होने चाहिए, तो इस तरीके से हम जो है वर्ल्ड हिस्ट्री तक आएंगे। एक बहुत ब्रॉड मैं बता रहा हूँ। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जब हमको मौका मिला, तो जो challenges with respect to that state, reorganizing its territory, right? Challenges with respect to lives of the people, for example, official language status debate, right? Or reorganization of provinces on the basis of language, right? Aspiration of the people को इस nation state में कैसे solve किया, meet किया, उसके अंदर क्या challenges आए, तो एक ये पूरा दृष्टिकोण जिसमें सिर्फ it is not just about हम silos में नहीं पढ़ रहे हैं, बट इसके थ्रू हम एक उस पूरी चीज को कनेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्टोन एज राइट टिल द पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो सर इट्स ऑल कनेक्टेड, इट्स ऑल ओवर वन थीम कि यार स्टेट कैसे रूल कर रहा था और लोग उसको कैसे रिएक्ट कर रहे थे। मतलब ब्रॉडली हम ऐसा सोच सकते हैं। राइट। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री टू वर्ल्ड हिस्ट्री, सर विल बी कवरिंग द एंटायर पोर्शन ऑफ हिस्ट्री फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। सर एक बस लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, सर प्री और मेंस में क्या डिफरेंट अप्रोच यहाँ पर हम रखेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स द एग्जाम इज वेरी डिफरेंट इन बोथ दी स्टेजेस, सो व्हाट इज गोइंग टू बी आवर डिफरेंट अप्रोच हियर? देखिए, जहां तक कॉन्सेप्ट को समझाने की बात है तो इंटीग्रेटेड वे में हम पढ़ेंगे। वहां पर ये डिफरेंशिएशन नहीं लेके आएंगे कि ये प्रीलिम्स है और ये मेंस है। राइट। क्योंकि मैं किसी भी एक मेंस क्वेश्चंस में से 10 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस निकाल सकता हूँ। करेक्ट। स्टूडेंट को बस ये हम ट्रेन करने की कोशिश करेंगे कि जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो इसमें से कितने प्रकार के यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपीएससी का माइंड किस प्रकार से काम करता है विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, सो दैट वी आर एबल टू ट्रेन द स्टूडेंट्स इन गेसिंग द FYQ. Everyone talks about PYQ. I say talk about FYQ, future year question. PYQ तो कोई भी कर ले, and मेरे स्टूडेंट्स they will be able to guess FYQ. मतलब ये मेरा मिशन रहेगा, देखते कितना सक्सेसफुल होता है। No, sir, I'm sure we'll be very successful in this mission. Thank you so much, sir, for your input. Thank you. So for polity, we have M. Puri sir here. Sir has had a teaching experience of more than 25 years. I'm sure कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो शायद 25 साल के खुद ना हो, पर सर 25 साल से पढ़ा रहे हैं, right? And we'll just now talk to sir about how sir is going to approach polity in this batch. Okay. अच्छा, डॉक्टर शिवन, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, बिकॉज जो फाउंडेशन के स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी यंग होते हैं, ठीक है, और उनके जो आइडियाज़ होते हैं अबाउट द जनरल प्रिपरेशन एंड पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा सब्जेक्ट है वो थोड़े बहुत वेग रहते हैं, ठीक है। उसका कारण ये है कि उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते। तो मेरी पहली अप्रोच हमेशा ये रहती है कि उनके फंडामेंटल्स क्लियर करूँ। यू नो, मैं जस्ट टू गिव यू एन वेरी स्मॉल एग्जांपल, राइट, कि जैसे द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सबको पता है लोकसभा का स्पीकर होता है, जी सर, पर स्पीकर ऑफ द लोकसभा कभी बोलता नहीं है, वो कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करता। वो जब भी बोलता है सिर्फ ना लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए बोलता है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में शोर शराबा होता है, कई बार पैंडेमोनियम हो जाता है, थोड़ा यू नो स्लोगनरिंग हो जाती है, तो सिर्फ उनको कंट्रोल करने के लिए बोलता है। तो ही इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन डिबेट्स, ठीक है, और उनके तो पहले इंस्टेंस में वोट भी नहीं कर सकते वो किसी चीज के ऊपर, राइट। जब वो व्हेन ही इज नॉट अलाउड टू स्पीक और पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, देन व्हाई इज ही स्टिल कॉल्ड अ स्पीकर, ठीक है। अब जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है, तो उनके अच्छे टीचर जो फिजिक्स मैथ्स के होते हैं उनको ये बात कही जाती है कि यू कैन डू गुड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स एंड मैथ्स इफ योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, जी, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर एक्सियम अप्लाइज मोर टू ह्यूमैनिटीज, करेक्ट। ये शायद फिजिक्स मैथ्स पे उतना अप्लाई ना करते हो जितना कि हमारे से अप्लाई करता है, कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो आपकी जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही कोई ना कोई सुपर स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब जैसे लोगों को ये नहीं पता होता, बड़ा बेसिक चीज़ है कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। मैं क्लास में पूछता हूँ तो वो बोलते हैं सर बेलेबल ऑफेंस जहाँ पे बेल मिल जाती है और नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलती है। मैंने कहा भैया सब में बेल मिलती है, ठीक है, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस इज नॉट वन जिसमें बेल नहीं मिलती है, ठीक है। पीपल डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, अब तो नए आ गए हैं ना, वो BNSS आ गया है, ठीक है, BSA साक्ष्य अधिनियम आ गया है, उनकी रिप्लेसमेंट आ गई है। तो माय
initial approach is to build the fundamentals of the student in terms of the key concepts और जो words होते हैं, जो typical terms हैं हमारी पॉलिटी के ecosystem के अंदर, उसकी clarity पहले उनको मिल जाए. जब वो clarity उनको मिल जाएगी, now that becomes a platform for then analyzing more complex concepts, जिसमें मेंस पे क्वेश्चन आते हैं. जी, ठीक है ना, ताकि फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे, आपके पी के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे. मतलब नॉर्मली आई मेक अ प्रॉमिस टू माय स्टूडेंट्स, इस लाइन पे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हालांकि आई डोंट वांट टू साउंड वेरी प्रिटेंशियस व्हेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है, कि आप मेरी क्लासेस एक बार लगा लोगे ना, तो मैं एक गारंटी कर सकता हूँ आपको कि मेंस और प्री में कोई ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपके सामने जो आपको नहीं आता बाकियों को आता है. जी, ये जरूर हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो सिर्फ आपको आता है और बाकियों को नहीं आता. जी, ठीक है, दिस इज द गारंटी आई गिव टू एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हाँ, जी, कि ये कभी नहीं होगा कि भी आप बाहर आके को देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, दूसरा बच्चा कह रहा है ये तो मुझे आता था. ठीक है, दिस विल नेवर. जी, द रिवर्स माइट हैपन, इट्स मोस्ट लाइकली टू हैपन. जी, ठीक है. सो सर, अदर देन पॉलिटी इन फाउंडेशन जैसे कि आप जानते हैं, सारथी आईएएस आल्सो फोकसेस ऑन द मेंस एग्जाम. तो सर GS2 मेंस भी हमारे साथ पढ़ाने वाले हैं. सो सर, व्हाट is the different approach we are going to follow for mains once the foundation of the students is clear? Mains में क्या focus है? अब पता क्या है, जैसे अब जब से ये जो we've had this quadrification of the GS पेपर, 4 पेपर हो गए ना. जी सर. उस समय 2 पेपर आते थे. जी. तो उस समय के अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, उस समय मुझे लगता था कि जैसे ना प्री और मेंस के क्वेश्चन में फर्क ही नहीं है. जी, प्री में क्वेश्चन आता था विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज. मेंस में क्वेश्चन आ रहा है 15 मार्क्स का, व्हाट आर द मेजर फंडामेंटल ड्यूटीज. अरे जी, ये क्या, इट इज द सेम क्वेश्चन, जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है. प्री में क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल्स आर मनी बिल्स. ठीक है. मेंस में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज अ मनी बिल. जी, राइट 150 वर्ड्स ऑन इट. ठीक है. नाउ दिस इज नो लॉन्गर द केस. राइट. जो आपके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर, जो रेगुलर लॉज पार्लियामेंट पास करती है उन चीज के ऊपर, और जो जनरल हमारा गवर्नेंस का इकोसिस्टम है, जब वो क्लियर हो जाते हैं ना, नाउ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड आर फ्रॉम द अप्लाइड डायमेंशन. जी, इशू बेस्ड एक ये बड़ी हालांकि क्लीशेड सी टर्म है, कि भी स्टीरियोटाइपिकल टर्म है कि इशू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. जी, राइट. और क्वेश्चंस दे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स मोर एज अपोज्ड टू जस्ट रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन. राइट. ठीक है. तो जब वंस योर फंडामेंटल्स आर, जो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी फंडामेंटल्स के अंदर, तो देन वी कैन बिल्ड ऑन. फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में कुछ चीज आती है, स्टूडेंट की एक ओपिनियन बनती है उसके ऊपर, देन यू कैन आल्सो क्लैरिफाइड फ्रॉम मी कि सर ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो हमने कैसे ओपिनियन देनी है और क्या ओपिनियन देनी है. राइट. इट हैज बिकम मोर एनालिटिकल, मोर इशू बेस्ड. और एक तरीका होता है लिखने का, इंट्रोडक्शन कैसे होती है, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पॉइंट्स कैसे किए जाते हैं, कंक्लूजन और आपका जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें क्या लिंक होना चाहिए. So these are the things we focus on so that you can, my point is this. Let us say some student with respect to a mains question has 5 points of analysis to write. उसके पास 5 पॉइंट उसके दिमाग में है कि हाँ ये बिल्कुल सही पॉइंट्स हैं. जी, ठीक है. आपके पास भी वही 5 पॉइंट्स हैं. आप उनको कैसे लिखते हो? राइट. टू स्कोर बेटर मार्क्स. जी, दिस इज द की ऑफ इट. वो भी 5 पॉइंट लिखेगा, सेम पॉइंट्स, आप भी वही 5 पॉइंट लिखोगे. जी. आप कैसे उन 5 पॉइंट्स को लिख के नंबर ज्यादा ले सकते हो? दिस इज द फोकस. Sir, I've always said that everybody at Saarthi IAS is a Marxist, and Marx is spelled as MARKS. So the idea here, right. our focus is कि concepts build करेंगे, we'll stay with the fundamentals, but ultimately we have to get the most and the maximum marks possible. So thank you so much, sir, for this input. Thank you. So now coming to economy. In economy, we have my teacher of economics, Aditya Kalia sir, who will be teaching all of you the foundation of economics. तो सर क्या अप्रोच हम यहाँ पे रखने वाले हैं? अपनी अप्रोच इकोनॉमिक्स की would be that we are going to focus one broadly speaking on concepts, building your base. आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए. बेस स्ट्रांग होगा, आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे. याद करने वाली चीजें याद करेंगे, लेकिन जो चीज समझनी है वो समझेंगे, समझ के आगे बढ़ेंगे. और जब समझ के आगे बढ़ेंगे तो याद करने की चीज अपने आप याद हो जाएगी. सो इट मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, लर्निंग ऑटोमेटिक, remembering automatic. It can't be remembering and then forgetting unless your base is strong. That is what we'll focus upon. Right. I will teach you concepts. I will teach you subjects. When you look at economics syllabus, अब syllabus में लिखा हुआ बड़ी broad सी term है, growth and development, या फिर we'll look at unemployment. There is what in unemployment, what in poverty, what in growth. So Right. the syllabus is very vague. Right. Our source of reference is previous year questions. Our objective is future year question. Right. So we'll try to build concepts so that we are able to, one, solve the previous year questions.
Second, from that we are able to also be able to solve the question that are going to come in exam. That will come only when we are focused on building concepts. Right. तो सर आई थिंक जो मेन चीज यहाँ पर है वो ये है कि हम कंसेप्चुअल फोकस को फर्स्ट रखेंगे. जी बिल्कुल. The idea is to understand everything. Understand everything. Right. एक और चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे. See, when you look at economics questions in prelims and mains both, you will see that you 4 options हैं. अब 4 में से 2 conceptual हैं, 2 factual हैं. Right. लोग क्या करते हैं कई बार, सर मैं करंट अफेयर्स पढ़ लूँ, conceptual ना पढ़ूँ, सर मैं conceptual पढ़ूँ, करंट अफेयर्स ना पढ़ूँ. अरे यार कोई डिवीजन नहीं है दोनों के अंदर. Right. आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं ये चीज रट के चला जाऊंगा और फिर एग्जाम में सॉल्व कराऊंगा, कभी नहीं होने वाला है ऐसा. Right. आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की. वो पूरी अंडरस्टैंडिंग करवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं. We'll make sure that you have full understanding, and with our efforts and your dedication, I hope that you will be able to do well. That is whatever approach. Right. So I think economics sir सारे subjects में से probably is the most conceptual, the most technical, and the objective here will be to resolve that technicality. टेक्निकल का मतलब टफ नहीं होता. बिल्कुल. टेक्निकल का मतलब बस ये होता है कि थोड़ा एफर्ट और डाल दें. बिल्कुल. We will put in that effort, and I'm sure the students will also put in that effort, sir. Yeah. एक और चीज मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, because you said economics is technical, conceptual amongst others. Every subject has its own uniqueness, and you want to think at that as a challenge or a property or a character of that subject. It's up to you. Let's not go into the semantics. Right. Economics में question, I'll give an example. Question will be, which of the following will be least inflationary in nature? So when you see the question, it looks like it's inflation question, but then you see the options. Option is RBI printing more money, that is monetary policy का aspect है. Right. Then you see some foreign investment coming into the country, वो external sector का aspect है. Right. Then you see some fiscal deficit of the government. Question लग रहा है inflation का है. 4 option अलग अलग chapters के हैं. Right. तो अगर आपने याद कर रखी हैं चीजें तो फिर नहीं हो पाएगा सवाल. Right. आपकी पूरी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ये हमारा फोकस रहेगा. Right. Thank you, sir. And I'm sure that students, once they have understood this conceptual part, it will be very easy for them not only to solve questions but also to understand current affairs, understand what is happening in the country, and generally understand this subject not only for prelims but also for mains. Yeah. That's it. So for geography now, we have Pallavi ma'am here. Ma'am has not only appeared in 3 UPSC interviews, not only does she have 100 percentile in UGC for geography, she has also written a book with the great Marjis Hussain sir. So ma'am, how are we going to approach geography here in our foundation course? देखिए ज्योग्राफी जो है, एज आई ऑलवेज से, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंसेस. सो इसमें कुछ पार्ट हाईली कॉन्सेप्चुअल रहता है, एंड देन अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप उस पे सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज वाला जो पार्ट है वो इजीली बिल्डअप कर सकते हैं. सो हमारा फोकस हमेशा यही रहता है कि आपको ऐसे पढ़ाया जाए कि कॉन्सेप्ट एक बार में जो क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको उसका रट्टा ना करना पड़े. एक बार आप वो क्लियर कर लो तो आप कभी भी लाइफ में वो चीज़ भूलेंगे नहीं. सो फोकस ये है कि हम कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. मैं इंश्योर करूँगी कि एक एक डाउट आपका क्लियर रहे. एंड तक आई विल वेट फॉर द क्लासेस टू एंड, जब तक आपके डाउट्स नहीं हो जाते. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट मैपिंग, मैपिंग में भी देखिए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से मिनिमम 3-4 क्वेश्चंस आते ही हैं एवरी ईयर. एंड मैपिंग एक लो हैंगिंग फ्रूट है. उस पर थोड़ी सी मेहनत आपने कर ली तो आपके वो 8 नंबर आपकी जेब में है. सो मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग, इंडियन मैपिंग, हम उसको भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे. वर्ल्ड मैपिंग कॉन्टिनेंट वाइज रहेगा, प्रॉपर एक ऑर्डर से हम चलेंगे, बहुत खिचड़ी नहीं बनेगी. आई विल मेक श्योर ऑफ दैट. इंडियन मैपिंग मैंने इंटीग्रेट करके रखा है. फिजिकल, जब हम इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहीं पे मैं आपको इंडियन मैपिंग भी पढ़ाती जाऊंगी, सो दैट यू कैन ईजिली एसोसिएट विथ व्हाट वी आर स्टडिंग. एंड अगर वो एसोसिएशंस आपके दिमाग में क्रिएट होते गए तो देन नो वन कैन स्टॉप यू. Hey ma'am, I've also been seeing on your YouTube channel, you've been doing a great job with mapping. I'm sure a lot of students have seen ma'am's Mapping Mangalwar series. So I think ma'am, mapping and geography, if we integrate, especially if we integrate the concepts, I think the students will be able to learn a lot. Absolutely, sir. Right. So for pre as well as for mains, ma'am, this is the approach we're going to follow. Absolutely. Right. So thank you ma'am for your input. Thank you so much, sir. So now coming to ethics and essay. Ethics and essay के लिए हमारे पास एक ऐसी faculty हैं जिनको बहुत rightly rank machine कहा गया है. Sir, so many toppers in the last few years have, commented on your teaching. They have given you so much credit for improving their marks.
तो सर यहाँ हम चाहते हैं कि जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उन्हें कोई अलग से मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए ना जाना पड़े, वो पहले दिन से ही हाई मार्क्स लेके आएँ। तो सर एथिक्स में वो काम हम कैसे इंश्योर करेंगे? व्हाट इज द मेथोडोलॉजी वी गोइंग टू फॉलो फॉर एथिक्स? तो इसका एक आंसर दें तो ये समझ लेते हैं कि मार्क्स आते क्यों नहीं है। राइट। अगर हमने उसको क्रैक कर लिया तो आई थिंक हमारे लिए आसान हो जाएगा जी सर, कि जो काम बाद में बच्चे करते हैं उसको फाउंडेशन में क्यों ना कर लें। राइट। तो अगर आप पेपर देखेंगे एथिक्स का, मेरा गुजारिश है कि आप जरूर पेपर खोलिए और देखिए, तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे हैं। आप क्वेश्चन देखिए, और ये तो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि टेस्ट ऑफ एनी मेंटरशिप इज कि हम पीवाई को कितना समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा है। राइट। और आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है जो आपसे पूछ रहा है कि इस थिंकर के बारे में 5 बातें बता दो, जैसे बोर्ड में हम पढ़ते आए हैं। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक पढ़े लिखे इंसान का आंसर करना है और उसमें एथिकल पर्सपेक्टिव इनकॉर्पोरेट करना है। तो बात आती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। तो हम फाउंडेशन में ही आई थिंक वो जगह है जहां पे हम रियल फाउंडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रख सकते हैं। और ये मेरा एंडीवर रहेगा कि जब भी हम टॉपिक करेंगे, टॉपिक के साथ साथ मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा। जैसे एक टॉपिक हुआ, साथ साथ बताऊंगा कि देखिए क्वेश्चन आप ऐसे इसको लगा सकते थे। और मुझे लग रहा है कि वो बहुत वैल्यू ऐड करेगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूं उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने में। और केवल यहीं पे नहीं, एक सेपरेट सेशंस भी लेंगे जिसमें आंसर राइटिंग के ऊपर अलग से काम होगा, 2 लेवल पर काम होगा। जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए उसके संग कौन से क्वेश्चंस हैं, ये तो एक बात हो गई। पूरा सिलेबस हम ऐसे कराएंगे। उसके बाद सेपरेट आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे जिसमें एग्जैक्टली टेम्पलेट्स का यूज कैसे करना है, डायमेंशंस और कैसे खोलने हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। राइट सर। सर एक और चीज़ है जिससे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ना बहुत डरते हैं, आंसर वो है कि एस्से कैसे लिखना है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट से टॉपिक्स हैं, 10-12 पेज लिखने हैं। द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब कई बार तो पढ़ के समझ भी नहीं आता कि ये ऐसे लिखा क्या हुआ है, और उस पर आपको 10-12 पेज लिखने हैं। तो सर ऑब्वियसली उसमें नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट वो राइटिंग स्किल फॉर एस्से वो हम कैसे डेवलप करेंगे सर? आपने बहुत अच्छी बात कही कि नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है पर राइटिंग स्किल्स इज द मेन गेम ऑफ एस्से। राइट सर। और ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, आई थिंक आपकी जानकारी में वैसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके जीएस में उतने अच्छे नंबर ना होंगे पर एस्से में उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया होगा। दैट इज ऑल बिकॉज की राइटिंग स्किल्स पर उनका कमांड है। तो जब हम आपके संग ऐसे पर काम करेंगे तो बाकी सब जो टीम में धुरंधर जुड़े हैं, पूरी धुरंधरों की टीम आई थिंक कंटेंट तो आपका सॉलिड करा ही देगी। तो मेरा काम तो आप लोग काफी आसान करोगे। उसके बाद मेरा बस काम है कि आपको राइटिंग स्किल से बात करना, कि जब टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के थीम्स के अराउंड सोचना कैसे है। और ये आप अगेन मैं कहूंगा पेपर उठाइएगा और आप देखेंगे कि यूपीएससी का एक पैटर्न है, ऐसे का भी एक पैटर्न है जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। और उन्हीं थीम्स के अराउंड हम साथ में ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, आप करेंगे और मैं साथ में करूंगा। हम क्वेश्चंस देंगे और मैं बताऊंगा कि देखो ऐसे सोचना चाहिए था, ऐसे सोचना चाहिए था। और मुझे लग रहा है यही ट्रू टेस्ट ऑफ एनी पेडागोजी है। ये नहीं है कि ये टॉपिक कैसे करना, अरे भाई ये टॉपिक आए ना आए, लेकिन कोई और टॉपिक भी आ गया तो आप कैसे सोचोगे एक्चुअल पेपर में, हम उस पर काम करेंगे और वो आप और मैं साथ में मिलकर काम करेंगे। तो सोचने पे बात करना है कि क्वेश्चन को तोड़ना कैसे है, जो एब्स्ट्रैक्ट जो टॉपिक आ रहा है उसके बारे में हम कैसे एलॉबरेट कंटेंट बना सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो बाकी जीएस पेपर में हमने गेन करी है उसका एक बेहतर यूज हम कैसे कर सकते हैं, और फिर उसको लिखना कैसे है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करनी है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों का मतलब हम तो इंजीनियर हैं भाई, ठीक है, तो हमने भी कोई ऐसे नहीं लिखे, तो राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो हम उस स्किल पे भी काम करेंगे कि एक्चुअल में ऐसे लिखते कैसे हैं, एक्चुअल में कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करनी, कैसे ऐसे को एक हाई नोट पर एंड करा जा सकता है। और वो कहा भी गया करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, आप और हम मिलकर साथ में प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल नंबर लाएंगे ऐसे। सर आई थिंक यू हैव पॉइंटेड अ वेरी गुड थिंग आउट हियर कि एक्चुअली राइटिंग की प्रॉब्लम नहीं है जितनी थिंकिंग की प्रॉब्लम है। एंड अगर हमें सोचना आ जाए, हमें वो ब्रेनस्टॉर्म करना आ जाए, तो we'll be able to write wonderful essays. Thank you so much, sir, for your input. Thank you so much for having me here, Dr. Shiv. Thank you, sir. So now for the 2 important things in this foundation course, we have Varun sir with us. One is international relations. तो सर पहले इसकी बात करते हैं। Important subject है, सब लोगों को बहुत पसंद है IR पढ़ना. But sir, I think how are we going to make this IR exam centric? That is where I think students will need this guidance from you. तो सर हम क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं यहाँ पर? राइट सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि IR I will be teaching you for prelims and mains both. Right. Although basic content same रहता है, but जिस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में IR के पूछ रहा है और जिस टाइप के मेंस में पूछ रहा है उसमें डिफरेंस है। प्रीलिम्स में यूपीएससी IR के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव सीन पीपल आर डूइंग कि IR प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं,
वो सोचते हैं आईआर खाली मेंस के लिए यूटिलाइजेशन है, तो हम प्रीलिम्स के लिए भी आईआर पढ़ेंगे डिटेल में। उसके साथ साथ मेंस में जिस लेवल का एनालिटिकल आईआर के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि कोई भी अगर फॉरेन पॉलिसी आई है ना, तो उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया EU फॉरेन ट्रेड डील हुआ, ठीक है, तो उसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो एनालिटिकल सेंस में हम डिटेल कवरेज यहाँ पे आईआर की करेंगे। एक चीज का मैं आईआर में ध्यान रखूंगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईआर एंड हिस्ट्री, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं आईआर में बस क्रोनोलॉजी पढ़ाते हैं कि 1950 में ये हुआ, 1952 में ये हुआ, 1953 में ये हुआ। एक ब्रॉडर इवेंट्स आपको पता होने चाहिए, है ना, ताकि आप एनालिसिस कर पाओ। लेकिन मेरा फोकस किस चीज पे रहेगा कि इसे हम हिस्ट्री की क्लास ना बनाए, इसे हम आईआर की क्लास बनाए और एक डिटेल एनालिसिस में आपको दूं आईआर का। सेकेंडली सर, द आइडिया ऑफ लाइव आंसर राइटिंग। सर जब मैं पढ़ रहा था, दिस इज व्हाट आई फाउंड द मोस्ट ब्रिलियंट आइडिया एट दैट टाइम इन 2021 एंड 22। तो सर एक बार मैं चाहूंगा ब्रीफली आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि आइडिया क्या है। देखिए, लाइव आंसर राइटिंग सेशन इज अ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जहां पे कि आपका आंसर राइटिंग का इनर्शिया हमें खत्म करना है ना। वी विल बी डूइंग 40 लाइव आंसर राइटिंग सेशन। एक सेशन में 5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। वहां पे मैं आऊंगा स्क्रीन पे, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, मैं आपको आइडिया दूंगा, डिमांड समझाऊंगा क्वेश्चन की, उसके बाद टाइमर स्टार्ट होगा एंड यू विल राइट द क्वेश्चन देन एंड देयर। आप भाग नहीं सकते, आपका इनर्शिया मैं खत्म करूंगा। 5 क्वेश्चन ऐसे बैक टू बैक आप मेरे साथ लिखोगे, मैं आपको डिमांड समझाता जाऊंगा, हिंट्स आपको दूंगा, लिखोगे लेकिन आप, टाइमर यहां पे चलेगा, ठीक है। ऐसे जब पूरे सिलेबस पे मेंस के GS 1, 2, 3, 4 इंक्लूडिंग एसे जब आप आंसर राइटिंग कर लोगे तो हर जगह आपका इनर्शिया खत्म हो जाएगा। This is how you will learn answer writing practice in this foundation course. So now comes our OG Shivin sir, what he is going to do in this foundation course. सबसे पहले देखते हैं कि रेगुलर मेंटोरशिप सेशन। तो सर ये आपने अभी एक्सप्लेन किया सभी स्टूडेंट को कि दिस इज द न्यू फीचर दैट वी हैव एडेड इन दिस फाउंडेशन कोर्स। इसके बाद हम बात करते हैं GS3 मेंस की। तो कैसे हम GS3 प्रोवाइड करने वाले हैं स्टूडेंट को? सर सो फर्स्टली लेट मी क्लैरिफाई कि GS3 मेंस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, science and tech, environment, security, disaster management, all of them I'll be covering live with you in detail. तो सारे subjects मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। And sir, idea simple है। I do a lot of research for these subjects. My track record is very clear. Last year, sir, out of 20 questions, I hit all 20. अब वही track record मुझे maintain करना है। I am very conscious about my reputation. 20 out of 20 is the target कि यार सारे question hit हो और रट के कुछ नहीं जाएंगे। We will have the best content. I research a lot so that you don't have to. एक single stop solution है, ये document मुझे पढ़ना है, इसमें ही value addition है, इसमें ही data points हैं, इसमें ही सारे concepts explained है। मैं ये document अच्छे से पढ़ के जाऊंगा और मैं mains में जाऊंगा and I would have almost all questions covered from this one source. I also cover the economic survey and budget here in completion. तो आपको कहीं और even current affairs के लिए जाने की जरूरत नहीं है for GS3. So this is my job and we are going to cover it completely. राइट, सो दिस इज अबाउट GS3। अब बात करते हैं सर राइट स्मार्ट की, जो सारथी IAS की रिजल्ट मशीन है। एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है राइट स्मार्ट का? सर राइट स्मार्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा हमारा मेंस का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। मेंस में कंटेंट एक तरफ हो गया है, जैसे आपने मेरे साथ GS3 पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, नोट्स मिल गए। अब आंसर लिखने के लिए पहले आपको कोई आंसर लिखना सिखाएगा ना। इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग, यू डोंट लर्न इट, इट्स नॉट ऑर्डेन्ड व्हेन यू आर बोर्न, राइट। आप सीखते हो उसको धीरे धीरे। तो वो कॉन्सेप्ट है राइट स्मार्ट कि एक एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं, और ये मैं आपके साथ मेंटरशिप सेशंस में भी करूंगा इन अ स्मॉल वे कि एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और यार इसको लिखते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने सबको लिख लिया और मैंने इसके लिए 13 अप्रोचेस डेवलप करी हैं, वी लर्न दीज 13 अप्रोचेस। आइडिया सिंपल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, मैं कहूंगा यार आप सोचो पहले आप इस आंसर को कैसे लिखते। कंटेंट पढ़ चुके हो आप भी, मेरे को भी थोड़ा बहुत कंटेंट आता है, आप सोचो आप कैसे लिखते। आपने 3 मिनट लगा के सोचा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार मैं देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सोचता। फिर आप कुछ सीखोगे मेरे सोचने के तरीके से, मैं आपके सोचने के तरीके से कुछ सीखूंगा। ऐसे हम 400 क्वेश्चंस करेंगे। 400 बार में ये एबिलिटी आप पे ट्रांसफर हो चुकी होगी कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, इंट्रो में ये जाएगा, कंक्लूजन में ये जाएगा, बॉडी में ऐसे डिवाइड होगा, ये डायग्राम बनेगा। एंड वंस दैट इज इंग्रेन्ड इन योर माइंड, और फिर आपने लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली वरुण सर के साथ, तो आंसर राइटिंग का जो फियर है ना, वो आंसर राइटिंग का फन बन जाएगा। राइट, आपको लगेगा यार और क्वेश्चन दे दो मुझे। लिटरली सर आफ्टर एवरी बैच ऑफ राइट स्मार्ट दिस इज द फीडबैक आई गेट कि सर अब और क्वेश्चन लिखने का मन है। राइट, और मैं कहता हूँ नहीं अब बस बहुत हो गया, आप प्री के लिए पढ़ लो। राइट, सो दैट इज द आइडिया। यू डू दिस कोर्स विद मी एंड यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ आंसर राइटिंग एवर। इट इज द की स्किल फॉर UPSC मेंस एंड वो मेरा काम है। एंड एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा,
देखिए राइट स्मार्ट और लॉस का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बिगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना। राइट स्मार्ट और लॉस से पहले क्या कल्चर चलता था इस यूपीएससी प्रिपरेशन इकोसिस्टम में कि आप कंटेंट पढ़ के सीधा टेस्ट सीरीज देने जाते थे। उसके बीच में गैप था कि यार आपने कंटेंट पढ़ा, आंसर राइटिंग तो आपने सीखे नहीं, अब सीधा आप जाके टेस्ट दे रहे हो, है ना। और वो चीज कभी वर्क करती नहीं थी। होता क्या था कि लोग एक टेस्ट सीरीज लिख के एक मेंस फेल होके फिर सीखते थे, फिर अगले साल मेंस देते थे, है ना। तो यहाँ पे माय स्टोरी सर, राइट। तो दिस इज हाउ यू विल ब्रिज दिस गैप। आप राइट स्मार्ट और लॉस के थ्रू वो गैप ब्रिज कर रहे हो कि आंसर राइटिंग सीख ली, इनर्शिया खत्म कर दिया, अब आप रेडी हैं टेस्ट सीरीज के लिए और आगे आंसर राइटिंग के लिए। राइट सर। So now comes last two subjects which are mostly ignored by the student, है ना, जिसके लिए आप जाने भी जाते हैं, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। तो हाउ वी आर गोइंग टू कवर दैट इन आवर फाउंडेशन कोर्स? सर पहले तो ये मिथ मैं ब्रेक कर दूं कि ये करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट करंट अफेयर्स किसी भी चीज का, आप आज का न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, किसी भी चीज का करंट अफेयर समझने के लिए स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। सर जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको ये क्लासेस सबसे ज्यादा पसंद आएंगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस्ड। एंड जो कोई साइंस बैकग्राउंड का ना भी हो, वी आर गोइंग टू फर्स्ट कंसेप्चुअली क्लियरली अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है, डीएनए आरएनए में फर्क क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल COP30 COP29 डिस्कस होता रहता है ये क्या है, इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट है। एंड सर आगे चलते हुए यूपीएससी इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज द वेटेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। ये हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं। शायद 2015 में ये सब्जेक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट हमारी रियल लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, राइट। एआई वाज नॉट समथिंग दैट वाज एग्जिस्टिंग 3 years ago, बट आज उसके बिना शायद हम गूगल सर्च करना हमने बंद कर दिया है, बट चैट जीपीटी हिस्ट्री आप किसी को नहीं दिखा सकते, राइट। सो द आइडिया हियर इज क्लियर, वी विल लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स in detail, and being a doctor sir, it comes naturally to me. This is my training, this is what I've studied for my entire life, and now I'm going to impart this learning to you. So in the past few years what we have seen is कि one of the major problem for the candidates who are giving their first attempt is not GS rather CSAT. बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पहले अटेम्प्ट में GS में तो फिर भी मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, बट CSAT कहीं ना कहीं उनका मिस हो जाता है। और CSAT पिछले कुछ सालों से यूपीएससी ने डिफिकल्ट भी कर दिया है ना। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू वी हैव विद अस राम मोहन पांडे सर। ही इज माय सीनियर फ्रॉम IIT Roorkee. He has guided lot of aspirant for the CAT examination as well, and now he is guiding UPSC CSE aspirant for the CSAT in past 15 years. Sir, welcome to Sarthi IAS. Sir, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि what is the biggest challenge you have seen जो aspirant face करते हैं CSAT में? सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं आपको बताऊं वरुण सर, तो ये है कि जब बच्चा यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है ना, तो वो सबसे पहले फोकस करते हैं जीएस पे, और सिलेबस इतना वास्ट है कि उसकी वजह से बहुत सारा टाइम उनका जीएस में चला जाता है, और जाना भी चाहिए। तो उस वजह से कहीं ना कहीं सीसेट बैक सीट पे रह जाता है, तो सीसेट पे वो फोकस ही नहीं कर पाते। ये एक थोड़ा सा चैलेंज आता है, बहुत बाद में वो शुरू करते हैं सीसेट। राइट। तो सर मेजरली द प्रॉब्लम जिसको आपने डिस्क्राइब किया, मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि सीसेट को भी अब एक सब्जेक्ट की तरह लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, है ना। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी बच्चों को सीसेट बताने के लिए? स्ट्रेटेजी ये रहेगी सर, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि सीसेट का जो पेपर था पहले जैसा होता था, तो पहले इट यूज्ड टू बी एन ईजी पेपर, वो आराम से क्लियर हो जाता था। तो बहुत सारे लोगों का अभी भी परसेप्शन यही है सीसेट को लेकर के, सीसेट तो कर लेंगे, बट एक्चुअली अभी ऐसा हो नहीं रहा। सीसेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो अभी कैट लेवल के भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, जो आज से 15 साल पहले 10 साल पहले कैट में पूछे जा रहे थे, अभी सीसेट में वो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि सीसेट को आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत है, बिकॉज नाउ सीसेट इज नॉट दैट इजी एट इज यूज्ड टू बी। और हम सीसेट को एक्चुअली बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आते हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनको लगता है कि सर मुझे तो मैथ्स फोबिया, वो नंबर्स देख के ही डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स, और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि एन IAS ऑफिसर नीड नॉट टू बी अ मैथमेटिशियन, ही हैज टू बी द लॉजिकल पर्सन। राइट। आपको सोचना आता हो, आपको प्रॉब्लम कॉम्प्रिहेंड करनी आती हो, ये जरूरी है। तो बेसिक लेवल से कवर करेंगे, सारे फॉर्मूलाज बताएंगे, सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, और उसके बाद जैसा हम अपने रिवीजन प्रोग्राम में भी कराते हैं, वी विल बी हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग इन सीसेट क्लासेस एज वेल, विच राम मोहन पांडे सर विल टेक एट सारथी IAS. ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। So the students who are part of our Foundation Plus program, they will have an option of one-on-one mentorship, and it is Sajal Singh sir who heads this one-on-one mentorship. One-on-one mentorship mein you get access to this person, Sajal sir, who has been the mentor to 550 successful rankers, including Shakti Dubey, who was All India Rank 1 in UPSC CSE 2024. तो सर ये जो one-on-one mentorship program है, इसमें कौन लोग mentors हैं, कैसे इनको रन करते हैं, क्या बच्चे अपने मेंटर से बात कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड इट। तो सर ये सारी डिटेल्स प्लीज आप हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर करिए।
तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए डेफिनेटली नॉलेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू द क्लासेस एंड एवरीथिंग. बट होता क्या है कि हर एक बच्चा एक डिफरेंट लेवल पे होता है. कोई बच्चा बिल्कुल बिगिनर है, कोई बच्चे को थोड़ा आइडिया है, कोई बच्चा इकोनॉमिक्स में अच्छा है, कोई पॉलिटी में अच्छा है. प्लस बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज भी होते हैं कि पीपल आर हार्ड वर्किंग, एस्पिरेंट इज हार्ड वर्किंग, बट वो शायद कंसिस्टेंट नहीं है या शायद बीच बीच में वो अपने ट्रैक से बाहर चला जाता है. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि यू हैव अ पर्सनल मेंटर. और पर्सनल मेंटर कोई ऐसा मेंटर नहीं है, ही इज इंटरव्यू गिवन पर्सन. और जो हमारा कंबाइंड एक्सपीरियंस है वो 76 इंटरव्यूज का है. तो हमारे सारे मेंटर इंटरव्यू गिवन है. और हाउ डज इट वर्क? सो बेसिकली क्या होता है कि इसमें आई विल टेक 30 मेंटरशिप सेशंस, ग्रुप सेशंस टेक्निकली, जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि चीजें अप्लाई कैसे करें. जो चीजें मैंने इन 550 प्लस रैंकर्स को बताई हैं, the techniques, the smart work, how to write, answers, how to exactly, apply your knowledge to solve the prelims question. ये सारी चीजें मैं आपको through these 30 sessions बताऊंगा. इसके बाद क्या होगा कि आपका एक पर्सनल मेंटर भी रहेगा. और वो पर्सनल मेंटर जो है, the mentor will help you with many things. सबसे पहले स्टार्टिंग में टारगेट देगा आपको कि भाई एग्जैक्टली आपको नेक्स्ट 14 डेज में ये चीजें करनी है, क्योंकि लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है. एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये एक दिक्कत फेस करते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं और उनको नहीं पता होता है कि वो अपना डे कैसे डिवाइड करें. सो उसके लिए पर्सनलाइज टाइम टेबल रहेगा उनका ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. और उसके बाद आफ्टर 14 डेज द मेंटी हैज टू ऑल्सो फिल द अकाउंटेबिलिटी शीट, जिसमें वो एग्जैक्टली जब नेक्स्ट टाइम वो मेंटर से मिलेगा तो वो एग्जैक्टली बताएगा कि मैंने लास्ट 14 डेज में ये किया, ये टारगेट पूरा किया और ये मेरे गैप्स है. राइट. बेस्ड ऑन दैट नेक्स्ट मीटिंग में मेंटर जो है उसके उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके उस प्लान को चेंज करेगा एंड देन उसके बाद नेक्स्ट 2 वीक्स का प्लान देगा. तो एक प्रॉपर आपके पास एक पर्सनल मेंटर रहेगा थ्रू आउट द जर्नी, जो आपकी काफी चीजों में हेल्प करेगा, आपके नोट्स बनाने में, आपके आंसर्स रिव्यू करेगा. राइट. आपको एग्जैक्टली इंश्योर करेगा, बिहेवियरल सपोर्ट देगा, एवरीथिंग. ही विल बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन. यू हैव एनी प्रॉब्लम, रीच आउट टू योर मेंटर. तो सर जस्ट टू क्लैरिफाई हियर कि जो सारे मेंटर्स हैं इस प्रोग्राम में सब इंटरव्यू अपीयर हैं एंड द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू देम एवरी 15 डेज. बात कर सकते हैं उनसे पर्सनली. एंड जो भी उनके प्लानिंग इश्यूज हैं, जो भी अदर देन एकेडमिक्स एंड ऑफ कोर्स एकेडमिक इश्यूज, जो भी ओवरऑल जो इश्यूज हमारी जर्नी में आते हैं, if they need someone to share this with, वो यहाँ पर one-on-one mentorship में हम इंश्योर करते हैं. इनफैक्ट यहाँ तक हमारे मेंटर्स हेल्प करते हैं कि लेट्स से आपने कोई क्लास करी और उसमें आपको ये लग रहा है कि सर इस टॉपिक में मेरे को ये चीजें ढंग से समझ में नहीं आ रही, आप कुछ अगर मेरे को स्मार्ट वे बता दो, तो वहां तक भी वो लोग हेल्प करते हैं. सो मेंटर्स जो है वो आपका एक वन स्टॉप, मतलब टेक्निकली ही विल बी योर बिग ब्रदर. And usually we don't have access to that big brother, so we go to certain people and you get misguided. That person और इन mentors के ऊपर पूरा कंट्रोल मेरा रहेगा. तो अल्टीमेटली तो जैसे मैं आपको मेंटर करूंगा, इन द सेम वे दिस पीपल विल मेंटर यू. और आपकी कोई भी दिक्कत होगी, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी थ्रू ईमेल आल्सो. Right. So thank you, sir. I think a lot of people who are a part of this program will definitely benefit from this one-on-one mentorship journey. Thank you, sir. So the final stage of this examination is interview. And interview की preparation के लिए at Sarthi IAS we have Saloni Khanna ma'am with us. She's an assistant professor in DU and taking interviews of UPSC aspirant from 2019. I think thousands of interview ma'am has taken in last 6 to 7 years. Welcome to Sarthi IAS ma'am. Thank you. मैम इंटरव्यू के लिए मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, लाइक रिसेंटली इंटरव्यूज की प्रिपरेशन अभी चल रही है, बहुत सारे इंटरव्यूज आप एस्पिरेंट के ले रहे हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या बिगेस्ट लिमिटेशन है इंटरव्यू में? एक सेइंग है कि रोम वाज़न्ट बिल्ट ओवरनाइट, वो मुझे लगता है कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स इनके केस में 100% ट्रू है. लोग तैयारी शुरू करते हैं इंटरव्यू की जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है, 2-3 महीने बचते हैं उनके पास, और फिर वो सोचते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे. लेकिन इंटरव्यू एक ऐसा गेम चेंजिंग स्टेज है यूपीएससी का जिसकी तैयारी 2-3 महीने में हो ही नहीं सकती. और इस बारे में कोई क्यों बात नहीं करता है, मुझे समझ ही नहीं आता. आई एम सो ग्लैड कि वरुण सर ने इस इशू को उठाया है कि हम कैंडिडेट्स को समझाएं कि उनकी पर्सनैलिटी उनको प्रिपेयर करनी है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ दर यूपीएससी प्रिपरेशन. सो वी एट सारथी आईएएस आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट कि हम
आपको ऐसे मेंटल फ्रेमवर्क्स दें, हम आपके माइंडसेट को ऐसे प्रिपेयर करें, हम आपको ऐसे इंटरवेंशन सेशंस दें जिससे आपका मेंस क्वालिफाई होने के बाद आपको टेंशन नहीं हो। जैसे मैं आपको सर से मैं डिस्कस कर रही थी कि मेरे पास एक कैंडिडेट आए जो बहुत परेशान थे, मेंस तो निकल गया लेकिन अब इंटरव्यू में कैसे अपीयर करें ये पता ही नहीं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उन्हें पहले दिन से इंटरव्यू की भी तैयारी कराएं। और पर्सनालिटी कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो एग्जाम तक सीमित रह जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी आज बिल्ड हो गई तो बस यूपीएससी इंटरव्यू में ही काम आएगी। ये पर्सनालिटी, ये माइंडसेट आपकी बाकी सारी स्टेजेस को भी इजी करता है। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो कॉन्फिडेंट है, वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जो आर्टिकुलेट कर सकता है, उसके चांसेस मेंस में स्कोर करने के बेटर है। या स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ये आपको हर स्टेज पे हेल्प करेगा। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम आपको पहले दिन से ऐसा गाइड करें कि आपकी पर्सनालिटी में ये चीजें रिफ्लेक्ट हो और आपकी पर्सनालिटी ऐसे बिल्ड हो कि जब आप इंटरव्यू स्टेज पर पहुंचे तो आप डरे ना हो या आपको पता हो कि आपको इस स्टेज पर भी क्या करना है। हम आपका साथ ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे मेंस के बाद, हम आपका साथ इंटरव्यू तक देने वाले हैं। राइट। तो आई थिंक यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस की जगह पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्ड हमें लिखना चाहिए था मैम जी। एंड राइटली यू सेड वन थिंग, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब आप पहली बार मेंस क्रैक करते हो, पहला इंटरव्यू देने जाते हो, इनफैक्ट जितना मेरा एक्सपीरियंस है सारथी आईएएस रन करने के बाद भी 80% स्टूडेंट पहले इंटरव्यू में खराब मार्क्स स्कोर करते हैं और दूसरे जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं वहां पे उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो पहली बार इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेंस क्रैक करने के बाद स्टार्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो फिल दैट गैप हमने इंटरव्यू गाइडेंस को आपके इस फाउंडेशन प्रोग्राम में इंटीग्रेट किया है। फॉर दैट सलोनी मैम विल टेक रेगुलर सेशन ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो नाउ इन योर होल यूपीएससी सिलेबस देयर आर फ्यू एस्पेक्ट व्हिच आर लेफ्ट. So there are few faculties which couldn't be here for the recording of this video. Still I'll tell you. तो देखिए आपका इंडियन सोसाइटी वाला सेक्शन जो है GS1 का, that will be covered by Pranay Agrawal sir. He has a teaching experience of more than 15 years now. He's also sociology faculty at Sarthi IAS and this makes him a natural choice for the Indian society section. What he is going to do in the Indian society section, there are 10 topics जो UPSC ने GS1 के सिलेबस में दिए हैं और काफी प्रिडिक्टेबल हैं। तो सारी मेजर थीम कंटेम्प्रेरी प्लस PYQ he will cover within the society lecture. And in the end, the last one is Jasleen Kaur ma'am. She had given 1 UPSC interview and 3 UPSC mains. She will be doing 2 things जो 2 new added features हैं सारथी आईएएस के फाउंडेशन प्रोग्राम में. One is live MCQ solving. तो रेगुलर जैसे आप कोई कंसेप्ट कवर कर लेंगे, कुछ क्लासेस, कुछ टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, तो उन टॉपिक्स पे लाइव MCQ सॉल्विंग जसलीन मैम विल टेक. एंड द सेकंड इज मेंटोरशिप सेशन. ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट फैकल्टी लाइनअप एंड कौन फैकल्टी आपको क्या क्या चीजें पढ़ाने वाला है, दैट वी हैव एक्सप्लेन टू यू. नाउ फाइनली चेक आउट द प्राइसेस ऑफ दिस कोर्सेज. तो एज सारथी आईएएस का जो टैगलाइन है उसमें ही अफोर्डेबिलिटी है. वी आर फॉलोइंग द सेम अप्रोच. तो देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ दिस फाउंडेशन प्रोग्राम विच वी आर ऑफरिंग यू. One is foundation, other is foundation plus. These are the prices. As you can see, they are very affordable. Remember this thing, foundation और foundation plus में क्या difference है? Only one difference is there. Foundation plus में आपको एक 1-on-1 mentor provide किया जाएगा जिसने कि इंटरव्यू दिया होगा यूपीएससी जर्नी के लिए, राइट. मेंटरशिप आपकी फाउंडेशन प्रोग्राम में भी है, बट फाउंडेशन प्लस में 1-on-1 मेंटर है. एक मेंटर जो डेडिकेटेडली आपके लिए है, आपकी जरूरतों के लिए, आपकी क्वेरीज के लिए. ठीक है. So this is the only difference. और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों प्रोग्राम में. As per your requirement you should choose. ठीक है. So these are the complete details of Live GS Foundation Batch 2027. अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, स्टिल आपकी कोई क्वेरीज अगर बची हैं, तो यू कैन सेंड अस द मेल ऑन ask@sarthi.com या आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट. मिलते हैं कोर्स के अंदर.